Namaskar students, good morning to all of you. Welcome to our today's English explanation session. Today in this explanation also we are going to learn English grammar. And in English grammar we are going to learn chapter 13, was, where. In our previous session we have learned chapter 11, leave words, adverbs. And in this session we are going to learn chapter 13. Chapter 12 we have already completed for term 1. So today we are going to learn chapter 13 from grammar, was, where. So let us start now. First of all we will go through the rules of this chapter, was, where. What is there here? Here you have given two sentences. Let us read that first of all. Read these sentences. Okay, the first sentence is, I was at my uncle's farm yesterday. I was at my uncle's farm yesterday. Second is, there were many ducks and cows on the farm. There were many ducks and cows on the farm. Now let us go through the rules. First of all, we use was or where to talk about someone or something in the past. ओके हम was where कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए हम जो ख़त्म हुई, जो पास्ट में हमने फिनिश कर लिया हो, उस चीज़ को अगर हमें बात करना हो, उस चीज़ के बारे में अगर हमें बात करना हो तो हम was और where यूज़ करते हैं. In that we use was when we talk about one person or thing. उसमें भी हम जब एक पर्सन या एक थिंग के लिए जब हम बात करते हैं, उस टाइम पे उस सेंटेंस के लिए हम was यूज़ करते हैं. We use where when we talk about more than one person or thing. और यही where कहाँ यूज़ करते हैं? जब more than one person और one thing हो, तब हम उस सेंटेंस के लिए where यूज़ करते हैं. Remember this table students. I, he, she. ये तीनों के लिए हम was यूज़ करते हैं. उस he में बॉय का नाम भी आ सकता है, she में गर्ल का नाम भी आ सकता है. And for we, you, they, we use where. ठीक है? So this table you can write it down, note it down in your grammar notebook also. Now let us start the exercise now. Exercise A. Write the correct words to complete these sentences. Okay? We will write the correct words. We will tick the correct words to complete the sentence. You have given here two options in the sentence. You have to choose the correct option and you have to tick it. Okay? So let us go through the first example now. First sentence is Amy. Amy is in class 2 now. Last year she dashed in class 1. Okay, so what is the sentence about? ये Amy है. Amy is the name of a girl. So she is in class 2 now. वो अभी class 2 में है. So last year वो कौन से class में होगी? Last year she was. So this is the sentence about the past. है ना? ये sentence हमें बता रहा है कि Amy last year मतलब पिछले साल वो कौन से क्लास में थी? शी वॉज इन क्लास 1. ठीक है? अगर वो इस साल क्लास 2 में है तो वो लास्ट ईयर कौन से क्लास में होगी? क्लास 1. सो एज दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट द पास्ट, सो वी विल यूज हियर एंड. इसमें सिर्फ एक ही गर्ल है जिसके बारे में बात हो रही है. सो फॉर दैट वी विल यूज हियर वॉज. So last year she was in class 1. Okay? Let us go through the second sentence. Fred dash very tired. So he went to sleep early. Okay? So
इफ़ यू वांटेड टू नो, अगर नेम में आप लोगों को कन्फ्यूजन है, सो अगर आपको पता नहीं चलता है, ये जैसे गर्ल का नेम है, ये बॉय का नेम है, ये नेम से आप लोग शायद मतलब आपको नहीं पता चलेगा, तो यू कैन गो थ्रू दी सेकेंड सेंटेंस जो उसमें है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर ही है तो दैट नेम इज़ कंसिडर्ड एज बॉय, अगर शी है सो दैट नेम इज़ कंसिडर्ड एज गर्ल। ठीक है, तो फ्रेड, तो यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में क्या यूज़ किया है, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन है, ही है। यस, सो ही इज़ यूज्ड फॉर यूजुअली बॉयज़, सो वी गॉट नाउ, सो फ्रेड इज़ अ नेम ऑफ ए बॉय, सो फ्रेड डैश वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू स्लीप अर्ली। फ्रेड जो है वो बहुत टायर्ड है, इसीलिए वो जल्दी सोने चला गया। So what will come here? We are talking about one person here, है ना। वो पर्सन कौन है, फ्रेड है। हम यहाँ पे सिर्फ फ्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। वो बहुत टायर्ड था, इसीलिए वो जल्दी सोने चला गया। So we will use here was. Fred was very tired, so he went to sleep early. Okay? Now let us go through the third sentence. The cows dash in the field. The cows dash in the field. So what we will tick here, was or where. For what we are talking about here in this sentence, क्या है noun में, the cows है ना, तो more than one cow है, सो मैनी काउज हुए, तो मैनी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यस, सो वेर। सो द काउज वेर इन द फील्ड, मतलब बहुत सारे काउज थे फील्ड में, खेत में। ओके, लेट अस गो थ्रू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। द फार्मर्स बास्केट डैश फुल ऑफ वेजिटेबल्स। द फार्मर्स बास्केट डैश फुल ऑफ वेजिटेबल्स। सी, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, है ना। अब फार्मर्स है तो फार्मर्स में कौन सा वाला एस है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, तो जब अगर किसी के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बिलोंग्स टू दैट पर्सन, है ना। हमें पता है क्योंकि हमने एपोस्ट्रोफी इंग्लिश के लिटरेचर में पढ़ा है कि हम अगर एपोस्ट्रोफी एस किसी भी नाउन के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब है हम उस नाउन के बारे में बात कर, नाउन की कोई चीज़ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हियर, so here in this sentence if you see we are talking about farmers basket, तो ये बास्केट किससे बिलोंग करता है, फार्मर से। तो एक फार्मर का बास्केट है जो पूरा वेजिटेबल से भरा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम किसके बारे में, नाउन में क्या है, ओनली वन फार्मर, एक ही फार्मर है जिसका बास्केट पूरे वेजिटेबल से भरा हुआ है। So here we will tick was in this sentence. The farmer's basket was full of vegetables. Now question number 5 is yesterday dash a sunny day. ठीक है, we are talking about yesterday मतलब बीता हुआ कल। yesterday dash a sunny day मतलब कल कौन सा डे था, sunny day था। so for that we will use was, yesterday was a sunny day. Now sentence number 6, the girls dash on holiday in Nainital last week. Okay, so what we are talking about here in this sentence, the girls dash on holiday in Nainital last week. यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, we are talking about the girls, है ना। here they have given girls, girls मतलब एक से ज़्यादा, more than one,
है ना। द गर्ल्स कहाँ थे, हॉलीडे पर थे, नैनीताल, वो भी कब, लास्ट वीक। ओके, गर्ल्स मतलब मैनी हुए, यस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, सो वी विल हैव टू टिक वेयर। द गर्ल्स वेर ऑन हॉलीडे इन नैनीताल लास्ट वीक। Sentence number 7. Nayan dash not at home yesterday. Nayan dash not at home yesterday. इसका मतलब नयन है, जो एक बॉय का नेम है, वो कल घर पर नहीं था। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नयन, है ना। नयन इज द नेम ऑफ ए बॉय। तो कल जब मैं उसके घर गया था या गई थी तो वो घर पर नहीं था। सो वी विल टिक वॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट नयन। नयन वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8. The books dash kept on the sofa. So here of which noun we are talking about in this sentence? The books dash kept on the sofa. मतलब बहुत सारे बुक्स है जो सोफा पे रखे गए हैं। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड दे आर इन मैनी, है ना, वो मैनी में है क्योंकि बुक्स है, बुक नहीं है। सो व्हेन द नाउन इज इन प्लूरल वी यूज वेयर। Okay, so the books were kept on the sofa. Sentence number 9. Justin dash very ill yesterday, so he could not go to school. Okay, Justin dash very ill yesterday. Now again, here you have given a name, that is Justin, है ना। You are not aware of this name, so what we will do? I have already said to you, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई नाम है जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, आप नहीं जानते हो, तो आपको क्या करना है, उसका सेकेंड सेंटेंस देखना है हमें। सो लुक एट दिस सेकेंड सेंटेंस. सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल. सो हियर दे हैव यूज्ड ही. सो what we found now, he is used for boys. So Justin is the name of a boy. Justin dash very ill yesterday. Justin बहुत बीमार था कल, इसीलिए वो कल स्कूल नहीं जा पाया. So here in this sentence, for whom we are talking about, है ना, हम जस्टिन के बारे में बात कर रहे हैं. वो कल बीमार था इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाया. So here we will use was. We will tick was. Justin was very ill yesterday, so he could not go to school. The last sentence is the salad dash made with fresh fruits. The salad dash made with fresh fruits, है ना. यहाँ पे एक सैलड है जो एकदम फ्रेश फ्रूट से बनाया हुआ है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग दैट इज सैलड, वन क्यूजाइन दैट इज सैलड, एंड इट हैज़ मैनी फ्रेश फ्रूट्स. सो एज द नाउन इज वन, so we will tick was for that. The salad was made with fresh fruits. Okay, so here we have completed our exercise A. Now we will go through the exercise B. Now what is there in exercise B? Complete this paragraph with was and where. Here you have given a picture, and according to that picture you have given here a paragraph. You have to complete the sentences in the paragraph using was and where. So let us start now. Hello, I am Manpreet. Okay, hello, I am Manpreet. I dash in Nepal during my summer vacation. See, if you see this picture, there are two girls standing over here and they are talking about their
holidays. Okay, so one girl named मनप्रीत है ना, तो मनप्रीत एक गर्ल का नेम है और वो ये बोल रही है कि मैं लास्ट जो मेरा समर वेकेशन था उसमें मैं नेपाल गई थी. So she is talking about her past. So I was, we will use here was to complete this sentence. I was in Nepal during my summer vacation. मतलब मैं नेपाल में थी जब मेरा समर वेकेशन था. Now we will read the next sentence. The plane ride from Chennai to Kathmandu dash very long and tiring. है ना, तो वो जब गए थे प्लेन में, एरोप्लेन में गए थे, बाय फ्लाइट दे वेंट. सो व्हाट शी इज़ टेलिंग, द प्लेन राइड फ्रॉम, उनकी जो प्लेन थी वो चेन्नई से काठमांडू तक की थी और वो बहुत ही लंबा और थकान वाला था, बहुत ही लंबा सफ़र था, इसीलिए हम थक गए थे. तो शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर पास्ट. दिस ऑल paragraph is about past, what she did in her summer vacation. So here also we will write was to complete this sentence. The plane ride from Chennai to Kathmandu was very long and tiring. Now next paragraph. My friend Gamya dash at the airport. Now here see, again one girl is there and she is her friend named गम्या, है ना, मनप्रीत की फ्रेंड है जिसका नाम गम्या है. सो शी वॉज देयर एट दी एयरपोर्ट. जब वो काठमांडू पहुंची तो उसकी फ्रेंड गम्या जो है वो एयरपोर्ट में थी, खड़ी थी. माई फ्रेंड गम्या वॉज एट दी एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट में थी. द एयरपोर्ट डैश सो बिग. एयरपोर्ट कैसा था? इट वॉज सो बिग. सो दिस ऑल सेंटेंस इज अबाउट पास्ट. सो द एयरपोर्ट वॉज सो बिग. हियर ऑल्सो वी विल यूज वॉज टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. नाउ देयर डैश सो मैनी पीपल एट द एयरपोर्ट. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली. हियर विच नाउन इज यूज्ड? एक तो एयरपोर्ट है जो प्लेस है एंड मैनी पीपल. बट इन दिस सेंटेंस इफ यू सी वी आर टॉकिंग अबाउट, द गर्ल इज टॉकिंग अबाउट मैनी पीपल व्हाट शी इज सीइंग ओवर देयर इन द एयरपोर्ट. देयर वर मैनी सो मैनी पीपल एट द एयरपोर्ट. जब वो एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट बहुत बड़ा था और उसने कहा क्या देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एयरपोर्ट में. देयर वर सो मैनी पीपल एट द एयरपोर्ट. नाउ अ फ्यू मिनट्स लेटर आई मेट गम्यास पेरेंट्स. थोड़ी ही देर के बाद मैं गम्या के पेरेंट्स से मिली. दे डैश इन द कार. वो कहाँ पर थे? दे वर इन द कार. दे क्यों? क्योंकि मम्मी पापा दोनों थे, पेरेंट्स मम्मी पापा थे, तो दो है, मोर देन वन है, तो इसीलिए हम वैसे भी दे के साथ वर ही यूज़ करते हैं. सो हियर ऑल्सो वी विल राइट वर. दे वर इन द कार. हु वर इन द कार? पेरेंट्स. गम्यास पेरेंट्स वर इन द कार. Kathmandu dash full of old temples that dash so beautiful. है ना, काठमांडू जो था वो बहुत सारे पुराने टेम्पल से भरा हुआ था, मतलब पूरा टेम्पल से भरा हुआ है और वो बहुत ब्यूटीफुल था, है ना. काठमांडू वॉज फुल ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम काठमांडू जो प्लेस है जहाँ पे मनप्रीत गई थी उसके बारे में वो बात कर रही है. तो काठमांडू वॉज फुल ऑफ ओल्ड टेम्पल्स दैट वर सो ब्यूटीफुल. इन द नेक्स्ट सेंटेंस अगेन शी हैज़ डिस्क्राइब अबाउट दिस ओल्ड टेम्पल्स, दैट ओल्ड टेम्पल्स वर सो ब्यूटीफुल, है ना. काठमांडू वॉज full of old temples that were so beautiful. Next we also went to one. हम एक टेम्पल गए थे.
इट डैश द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो उस टेम्पल का नेम था इट वॉज। एक ही टेम्पल है यहाँ पे पशुपतिनाथ जिसके बारे में बात हुआ है इस सेंटेंस में। सो वी विल यूज हियर वॉज। इट वॉज द पशुपतिनाथ टेम्पल। Gamya's father said that it is the most famous temple in Nepal। तो जब वो पशुपतिनाथ टेम्पल गए, गम्या के पेरेंट्स के साथ मनप्रीत गई, तब उसके गम्या के फादर ने कहा कि ये बहुत ही फेमस टेम्पल है नेपाल में, पशुपतिनाथ का टेम्पल। There dash a big traffic jam on the way to Gamya's house। जब वो लोग गम्या के घर की तरफ जा रहे थे तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हो गया था बीच में। सो देयर वॉज अ बिग ट्रैफिक जैम ऑन द वे टू गम्याज हाउस। व्हेन वी रीच्ड गम्याज ग्रैंड पेरेंट्स डैश वेरी हैप्पी टू मीट मी। जब हम घर पहुँचे तो गम्या के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत खुश थे मुझसे मिलने के लिए। ग्रैंड पेरेंट्स, सो दोनों है, दादा और दादी। सो हियर द नाउन इज मोर देन वन। ग्रैंड पेरेंट्स पर्सन है ना, तो हियर ऑल्सो वी विल राइट डाउन वेयर फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। गम्यास ग्रैंड पेरेंट्स वेर वेरी हैप्पी टू मीट मी। नेक्स्ट, आई हैड अ वंडरफुल एंड मेमोरेबल ट्रिप। आई होप Gamya comes to visit me Chennai in Chennai next year। ठीक है, मेरा जो ये ट्रिप था वो बहुत ही वंडरफुल यानी बहुत ही मेमोरेबल और अच्छा ट्रिप था। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि गम्या नेक्स्ट ईयर मेरे यहाँ चेन्नई आएगी विज़िट करने के लिए। ओके, सो हियर वी एंड्स अवर चैप्टर 13 ऑफ ग्रामर पोर्शन। We will meet in the next session with new chapter of grammar. Until then, stay home, stay safe, do take care of yourself. Namaskar everyone, bye bye.